Assalamu alaikum, my dear students. Welcome in online biology class. Hope you all are fine. As you are aware about that we have started with the new chapter, and in this chapter we have completed the beginning part of the chapter. So let's start with the next part of this chapter. So we are dealing with the chapter plant growth and mineral nutrition, and in this chapter last time we have seen the different factors that are responsible for the growth. We have seen the different phases of growth, and we have seen the different conditions for growth. So now let's talk about here in this session about the growth rate and types of growth. We are aware about the process that as soon as the seeds are sowing inside the soil, the germination of seed will take place, and after the germination of seed, the seed will get converted into two parts, that is radicle and plumule, and from the plumule the shoot part will develop, and from the radicle the root zone will develop. So here we can say that the plant is, or the growth in the plant is, overall we can say as soon as the growth will take place in the plant, the height as well as the volume of the plant will also increase. So if we will talk about the growth rate, so it will be the increased growth per unit time, we can say, because in plant overall growth will take place because of the different factors, say light, oxygen, water content, etc. So when the growth will start, plants attain maturity, and then उसके बाद उसमें flowering and fruiting start हो जाती है. So it is also called as efficiency index. So the whatever per unit time जो growth हो रही है plant के अंदर, that itself is called as efficiency index, and a rate of growth can be measured by an increase in the size and area of different plants organ like leaf, flower, fruits. तो जैसे ही maturity attain करता है plant, उसके अंदर growth का rate जो है वो भी increase होने लग जाता है, and with the help of the leaf production, fruiting and flowering, we can measure the actual growth rate in the plant. So the ratio of change in the cell number over the time interval is called absolute growth rate. It is also called as AGR. Alternatively, it is the measurement and comparison of total growth per unit time. तो ये जो AGR है, ये टर्म आपको याद रखनी है, बिकॉज अगला जो आएंगे वो सारे ये टर्म्स हमको यूज़ करनी है. This growth rate, it's of mainly two type, that is absolute growth and a relative growth. So the measurement and comparison of total growth per unit time is called absolute growth rate, whereas growth of the living system per unit time expressed on a common basis is called relative growth. So particularly if we will talk about the plant, so in plant if we will take the concept of growth, so we will see the overall growth, यानी कि उसकी हाइट और उसकी लेंथ, उसकी विड्थ किस रेट में बढ़ रही है, वो उसका एब्सोल्यूट ग्रोथ बताता है. बट अगर हम लोग रिलेटिव ग्रोथ की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग कॉमन बेसिस पे उसके अंदर ग्रोथ कैसी होती है वो हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं. सो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द रिलेटिव ग्रोथ एंड द एब्सोल्यूट ग्रोथ. In plant, growth can be measured in the terms of, number one, the cells produced, that is how many cells increased in that particular plant. So we can take the example of maize plant over here. So at the apical meristematic area of the maize plant can give rise to more than 17,500 new cells per hour. We can also see increase in surface area of the leaf, that is growth of dorsiventral leaf, we can take it as an example. Then increase in length, that is growth of the pollen tube. pollen tube का growth कितना होता है उस basis पे भी हम लोग वहाँ पे plant की growth rate का अंदाज़ा लगा सकते हैं. Then next we can see increase in volume of the fruit, that how much volume the particular fruit is having. So we can take an example of watermelon flower or ovary after fertilization increased in its size and volume up to by 3,50,000 times. So ये एक हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ, हम लोग वॉल्यूम चेक कर सकते हैं. देन इंक्रीज इन गर्थ ऑफ द शूट, दैट हाउ मच दैट गर्थ द शूट पर्टिकुलर शूट इज हैविंग, उसके बेसिस पे भी हम लोग उसकी ग्रोथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं. देन द लास्ट वी कैन टेक एज इन विद रिस्पेक्ट टू द ड्राई वेट, दैट इज इंक्रीज इन ड्राई वेट ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गन. तो इस ड्राई वेट के बेसिस पे भी हम लोग प्लांट के अंदर ग्रोथ किस हद तक हो रही है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं.
We can also see the methods for measurement of a linear growth of stem and a radicle. So the first method is direct method, that is we can measure it with the help of a normal scale whatever we are having, that is the simple method. Then we can also check it by the horizontal microscope method, that is used to measure growth in field work के लिए ये method काम आता है. Then oxanometer, so it is an equipment used for a precise measurement of a linear growth of shoot. So there are two types of an oxanometer, that is arc oxanometer and Pfeffer's oxanometer. ये higher level पे ये सारी चीज़ें जो है वो use होती है. Then the next one is chrysograph. So this is the record or we can say the primary growth accurately measure करने के लिए ये instrument use किया जाता है, and it magnifies growth up to 10,000 times, giving information of growth per second. So it is डेवलप्ड बाय सर JC Bose. सो वी कैन से ये एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस तरीका होता है ग्रोथ को नापने का, बहुत नज़दीक से, चूँकि यहाँ पे जो है वो 10,000 टाइम तक वहाँ पे उसको जो है वो राइट इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है. सो वी कैन ऑल्सो मेजर द एक्चुअल ग्रोथ बाय दिस पर्टिकुलर मेथड. So we can find the absolute growth rate by using this formula, that is AGR, that is the absolute growth rate is equal to dn upon dt. So here dn is the cell number and dt is the time interval. So absolute growth rate, when it is divided by total number of cell present in the medium, it gives a relative growth ratio that will be denoted as RGR. Alternatively, this RGR refers to the growth of a particular system per unit time expressed on a common basis, or it is the ratio of growth in the given time per initial growth. So this RGR is equal to AGR upon N. So here this AGR and RGR, that is absolute growth rate and relative growth rate, are useful in describing the dynamics of the cell growth in culture. So we can see the difference between also absolute growth rate and relative growth rate. That is, in absolute growth rate there is an increase in total growth of two organs measured and compared per unit time, that is the absolute growth rate, whereas relative growth rate will be the growth of the given system per unit time expressed per unit initial parameter, and it is called as a relative growth rate. तो एक बात यहाँ पे बहुत इजीली समझ में आती है कि एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट में हम लोग दो ऑर्गन का कंपैरिजन कर सकते हैं, और यहाँ पे रिलेटिव ग्रोथ में हम लोग ओवरऑल बात कर सकते हैं और एक पूरे सिस्टम की हम लोग बात कर सकते हैं. से फॉर एग्जांपल पूरे प्लांट सिस्टम की अगर हम लोगों को काउंट करनी है तो हम लोग रिलेटिव ग्रोथ रेट यूज़ करेंगे, एंड प्लांट में ही दो ऑर्गन को हम लोगों को वहाँ पर कैलकुलेट करना है कि कौन से ऑर्गन में कितनी ग्रोथ रेट हो रही है, तो वहाँ पर हम लोग जो है वो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं. Next we will talk about the types of growth. There are mainly two types of growth. The first one is arithmetic growth and the second one is geometric growth. So let's talk one by one about these two growth. So first we will see the arithmetic growth. Growth rate can be defined as increased growth per unit time, and we can measure this growth rate mathematically. So the rate of growth can be expressed mathematically, and there are two types of growth rate. So the types of growth rate will be arithmetic growth and geometric growth. So we have to see one by one about arithmetic growth and geometric growth. So let's have a look on arithmetic growth first. So in arithmetic growth, rate of the growth is constant and an increase in the growth occurs in arithmetic progression, that is 2, 4, 6, 8 सेंटीमीटर एक्सेट्रा. एक एरिथमेटिक यहाँ पे जो है वो पैटर्न फॉलो किया जाता है इस टाइप की ग्रोथ में. सो इन दिस टाइप ऑफ ग्रोथ द रेट ऑफ ग्रोथ इज कांस्टेंट, यानी कि हमारा जो है वो एक कांस्टेंट रेट में ही हमको जो है वो ग्रोथ का इंक्रीज हमको नज़र आएगा, जैसे कि 2 इंच, 4 इंच, 6 इंच एंड 8 इंच ऑनवर्ड्स. तो इस तरीके का एक जो है वो एरिथमेटिक पैटर्न हमको जब मिलता है, सो दैट इज़ अबाउट द एरिथमेटिक ग्रोथ. सो आफ्टर
mitosis one of the daughter cell continues to divide and the other cell take part in the differentiation and maturation। इससे पहले भी मैंने आपको जो है वो जब हम लोगों ने phases of cell division देखे थे वहाँ पे आपको मैं ये चीज़ बता चुकी हूँ, that is elongation of root at a constant rate best explains arithmetic growth। तो ये बहुत ही easily हम लोग इसको explain कर सकते हैं कि जो माइटोसिस के बाद डॉटर सेल हमको मिलते हैं उसमें से एक जो है वो डिफ्रेंसिएशन के लिए जाता है। तो यहाँ पे किस तरीके से उसकी रूट इलोंगेट होती है और किस तरीके से उसके अंदर जो है वो कांस्टेंट रेट पे ग्रोथ होती है, वो बेस्ट तरीका है अरिथमेटिक ग्रोथ को ऑब्जर्व करने का। सो वी कैन सी द लीनियर कर्व हियर। सो लीनियर कर्व इज ऑब्टेन व्हेन ग्रोथ रेट इज प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम एंड इफ़ वी वांट टू एक्सप्रेस इन मैथमेटिकल टर्म, सो हम उसको जो है वो इस तरह से इक्वेशन के थ्रू उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज एल टी इज इक्वल टू L0 plus RT. So here LT is representing the length at time t and L0 is representing the length at time 0, and here R is the growth rate and T is the time of growth. So when graph of length is plotted against the time, a linear curve is obtained and this is indicating that there is a constant growth in the particular organism or we can say the plant. तो हम लोग देख सकते हैं कि ये एक डिफरेंस बिटवीन फॉर्म में मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से अरिथमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ का फर्क होता है। अरिथमेटिक ग्रोथ को हम लोग जब ड्रॉ करते हैं तो एकदम लीनियर हमारा जो है वो ग्राफ बनती है, जबकि ज्योमेट्रिक ग्रोथ जो है वो कुछ इस तरह का जो है वो हमको एक कर्व वहाँ पे देखने को मिलता है। तो हम लोग देखेंगे अभी ज्योमेट्रिक ग्रोथ के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अरिथमेटिक ग्रोथ है दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग एज एल टी इज इक्वल टू L0 प्लस RT। सो L इज द लेंथ एंड R आफ्टर द टाइम T एंड L0 इज द लेंथ एट द बिगिनिंग वी कैन से, जहाँ पे 0 वहाँ पे कोई टाइम होता है, एंड R इज द ग्रोथ रेट। इसी तरीके से अगर हम लोग ज्योमेट्रिक ग्रोथ की बात करेंगे तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ इज द ग्रोथ वेयर बोथ द प्रोजेनी सेल्स फॉलोइंग माइटोसिस एंड इट रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड एंड कंटिन्यू टू डू सो। यानी कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया था आपको अरिथमेटिक ग्रोथ में सिर्फ एक सेल जो है वो माइटोसिस के बाद डिवाइड होके डिफ्रेंसिएशन उसके अंदर स्टार्ट होता है, बल्कि ज्योमेट्रिक ग्रोथ में ऐसा होता है कि बोथ द प्रोजेनी विल स्टार्ट ग्रोइंग एंड इट विल बी शोइंग द एबिलिटी टू डिवाइड, एंड इस तरीके से उनके अंदर जो है वो डिवीजन का प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो ग्राफ हमको मिलती है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि इसके अंदर एक कर्व मिलता है। तो आप लोग यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में भी दोनों की ग्राफ का भी डिफरेंस देख सकते हो। सो हियर वी कैन से दैट द इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ग्रोथ रेट एंड द ग्रोथ रेट कैन बी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिकल। आप लोग यहाँ पे डायग्रामेटिक फॉर्म में भी चेक कर सकते हो इसको। दैट इज अगर हम लोग अरिथमेटिक ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड अनदर डॉटर सेल डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, जैसे कि माइटोसिस में होता है, जैसे कि इलॉन्गेशन ऑफ रूट की हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। यानी कि इसमें जो भी डिवीजन होगा वो एक सेल से होगा, जबकि अगर हम लोग ज्योमेट्रिक ग्रोथ में देखेंगे तो इनिशियल ग्रोथ इज स्लो दैट इज द लैग फेज फॉलोड बाय अ रैपिड इंक्रीज इन ग्रोथ दैट इज लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज। हम लोग पिछले लेक्चर में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। एंड फॉलोड बाय द फेज वेयर ग्रोथ स्लो डाउन दैट इज स्टेशनरी फेज। तो यहाँ पे चूंकि ये मियोसिस का प्रोसेस है और दोनों सेल यहाँ पे कंटिन्यूसली डिवाइड करते ही रहते हैं अंटिल द स्टेशनरी फेज विल अटेन। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स में ले सकते हैं सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन जिसके अंदर ओवरऑल या लाइफ टाइम जो है वो ग्रोथ नहीं होती, बल्कि कुछ हद तक जहाँ पे वो मैच्योरिटी अटेन कर लेते हैं वहाँ पे उनके अंदर जो है वो एक स्टेशनरी फेज आ जाता है, जिसके बाद वहाँ पे उनकी ग्रोथ का रेट स्लो होते होते एकदम रुक जाता है। हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने खुद की कि हमारी हाइट जो है वो एक लेवल तक ही बढ़ती है और उस लेवल अटेन करने के बाद हमारी हाइट जो है वो ह्यूमन बींग्स में स्पेशली नहीं बढ़ती। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो ज्योमेट्रिक ग्रोथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। So again I am revising it for you people, that is in arithmetic growth only one daughter cell divides and all the other cells undergo differentiation and maturation, but in geometric growth the growth is proportional to the nutrient supply after which it decline. So all the daughter cells divide by mitosis, so this is also known as exponential growth. Okay, तो यहाँ पे जो है वो दोनों सेल्स जो डिवाइड हुए हैं मियोसिस के बाद वो डिवाइड होना स्टार्ट होंगे। तो हमको कुछ इस तरीके का यहाँ पे जो है वो लीनियर ग्राफ नहीं मिलेगी बल्कि एक कर्व फॉर्म में हमको मिलेगा, बिकॉज जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ग्रोथ का रेट जो है वो बढ़ता जाता है एंड एक पॉइंट पे आने के बाद वहाँ पे वो ग्रोथ जो है वो स्टेशनरी फेस वहाँ पे आ जाता है एंड वहाँ पे ग्रोथ रुक जाती है।
So again here in difference between form we can take the example of arithmetic growth and geometric growth कि किस तरीके से arithmetic growth में सिर्फ दो में से एक सेल जो है वो डिवाइड हो रहा है एंड कंटिन्यूसली वो डिवाइड होता है, एंड देन geometric growth में दोनों सेल्स जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, इसीलिए बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम उनका ग्रोथ का होता है, एंड देन उसके बाद वहाँ पे लेग फेस आता है। तो ये जो है वो डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस होता है अरिथमेटिक फेस एंड ज्योमेट्रिक फेस और ग्रोथ फेस का। We can also observe quantitative comparison between the growth of living system, and that is in two way, that is how much the growth is take place in the plant, किस हद तक ग्रोथ हुई है, और इसकी क्वांटिटेटिवली हम लोग वहाँ पे जो है वो इसको कंपेयर कर सकते हैं। सो द मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, वेर एज द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन अ common basis per unit initial parameter is called as relative growth rate RGR। तो हम लोग जो है वो इसके बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं that what is the relative growth rate। So in this above example we can say here there are two leaves A and B and are of different sizes, but they are showing certain pattern of growth. So they show same absolute growth in area in a given time. Both leaves grow and increase their area by 5 cm square to produce A and B leaves. A leaf of 5 cm square in size grows 5 cm square per day. Then its RGR, that is relative growth rate, would be 100%. If the leaf is 50 cm square in size and the growth rate per day is 5 cm square, then its RGR, that is relative growth rate, would become 10%. यहाँ पे इस एग्जाम्पल से हमको बहुत क्लियरली ये बात समझ में आ रही है कि अगर एक लीफ है जिसका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है और पर डे उसके अंदर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रोथ होती है, तो उस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो उसका जो RGR होगा, यानी कि उसका जो रिलेटिव ग्रोथ रेट होगा वो 100% होगा, बिकॉज पर डे उसके अंदर 5 सेंटीमीटर की ग्रोथ हो रही है एंड इनिशियली भी उसका साइज जो है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही था। लेकिन अगर हम लोग दूसरी तरफ अगर हम लोग ये देखते हैं कि एक लीफ ऐसा है जिसका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका जो है वो साइज़ है, दैट इज़ के लीफ भी यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका अगर साइज है और उसका ग्रोथ रेट पर डे अगर उसके अंदर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वहाँ पे उसका जो RGR होगा वो 10% हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि 50 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर में बहुत फ़र्क होता है। तो बेसिक डिफरेंस बट यही होता है इसके अंदर कि उसके साइज़ के हिसाब से पर डे उस प्लांट के अंदर कितनी ग्रोथ है, उससे हम लोग जो है वहाँ पे उसकी रिलेटिव ग्रोथ का वहाँ पे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे अगर वो ग्रो कर रहा है तो उसकी ग्रोथ उसका RGR 100% आता है। बट सेम अगर 50 सेंटीमीटर का अगर कोई लीफ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का और अगर वो पर डे उसकी ग्रोथ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो डेफिनेटली उसका जो RGR होगा वो बहुत कम होगा, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्टली वो 10% हो जा रहा है। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पे उसकी क्वांटिटेटिव ग्रोथ हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं विथ रिस्पेक्ट ऑफ रिलेटिव ग्रोथ रेट एज वेल एज द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इन पर्टिकुलर प्लांट पार्ट्स। So my dear students, hope you have understood today's topic. आई नो इट वॉज़ अ लिटिल बिट ड्राई, बट ये इतना भी बोरिंग नहीं है अगर आप उसको अच्छे से रीड करने की कोशिश करो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। बहुत आसान सी चीज़ें है ये। सिंपली हम लोग यहाँ पे जो है वो प्लांट के अंदर ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, किस बेसिस पे ग्रोथ होती है और उस ग्रोथ का रेट क्या होता है, बस वही कुछ यहाँ पे हम लोग जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो दैट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एक्चुअली, बस आपको उसको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उस पर ध्यान दो, ध्यान से पढ़ो आप उसको एंड रिलेट करो कंटेंट को। टेक्स्ट बुक लेके आपकी इस वीडियो से आप उसको रिलेट करके इमेजेस वट एवर आई हैव शोड टू यू, तो उसको आप जब रिलेट करने की कोशिश करोगे तो इंशाल्लाह ऑल द थिंग्स विल बिकम क्लियर टू यू पीपल। एंड स्टिल अगर आपको अगर कोई डाउट उसके अंदर आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल मीट इन अवर थर्ड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, सो वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर कंसेप्ट फ्रॉम दिस चैप्टर। सो इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द ग्रोथ कर्व। तो जो हम लोग आज पढ़ चुके हैं उसी के बेसिस पे हम लोग जो है वो कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें इंशाल्लाह आगे देखेंगे। सो टिल दैट यू जस्ट गो थ्रू द कंटेंट वट एवर वी हैव completed, try to correlate it, and still if you'll be having any doubt, so you can contact me. Okay, so till that, take care. Assalamu alaikum.